Guys, who is there? Mayuri, please mute your mic. Mayuri, please mute. Okay. So we have studied the questions related to product of vectors, and that is dot product and conjugate complex related product in a product of a vector. Then we have started consistency related to system of linear equations. I told you what is linear, then what is system, what is consistency, what are the laws. So we will just see the laws related to this. We have studied the augmented means the matrix which the coefficient matrix which involves your constants along with that is called as augmented matrix. That is, if you have only a, that is coefficient of matrix, you have a oblique d, you have increased the limit of your matrix, and that is your augmented matrix. When you have rank of a and rank of a oblique d is equal, the system is consistent. When it is not equal, then it is inconsistent. Okay. Then we have studied three things more. One is when the rank is not equal, obviously it is inconsistent. When it is inconsistent, you don't have a solution. It will be no solution situation. But when you have equal, when your ranks are equal, rank of a matrix, coefficient matrix, rank of a augmented matrix, both ranks are equal, then you have two conditions. When rank is equals to the number of variables, and when its rank is less than equal to number of variables. When it is equal, obviously it is consistent. When r equals to r dash, what is r? Rank of a. What is r dash? Rank of augmented matrix. When their r ranks are equal, then they are consistent. When it is equals to n, then you have unique solution or trivial solution. You have only one solution. When it is less than n, then you have infinite solutions. Okay. So these three conditions are very important in the view of your MCQs, objective related exam, and in the view of solving the questions in future. I hope it is clear. If you have understood, send yes. Not understood, send no. Okay. So guys, I told you that we will start with homogeneous equations. What is homogeneous equations and all. There are some conditions to study. So let's start with homogeneous equation, today's part. I have purposely not sent the PDF of this because I want homogeneous along with this. Okay. So today, once we will complete homogeneous, I will send you the PDF in the group. Homogeneous equations. This is the same part. Okay. So you have system of equations. You have this kind of system of equations, right? So many equations are there. Okay. These are the equations, and you write it is equals to d1, d2, d3. So when you write this in matrix form, when you write these things in matrix form, okay, so it will be like this: ax equals to d, a coefficient matrix, okay, then your d is constant matrix, and your x is variable matrix. These two are column matrix. This can be rectangular or square matrix. A can be rectangular or square. X and D are column matrix. They are strictly column matrix. Okay. Now, when this system of equations is like this is called as a general form. ठीक. लेकिन जब आपको ax इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स होता है, मतलब जीरो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस इक्वेशंस का सिस्टम. सो ये सिस्टम ऐसा है ना जहाँ पे आपको a11 x1 प्लस a12 x2 एंड डैट डॉट 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 गोज ऑन टू a1n xn इक्वल्स टू d लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? जीरो. जब कोई भी इक्वेशंस का इक्वल टू पार्ट जीरो होता है, वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस का इक्वल टू पार्ट जीरो होता है, उस इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस. ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस. होमोजीनियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाला जीरो हर जगह पे सेम रहेगा. इसके लिए होमो मतलब दे आर सेम, सिमिलर. होमोजीनियस, जीनियस मतलब कोई ओरिजिन से निकलता है, ये जीरो के ओरिजिन से निकलता है, इसके लिए इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस. समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो. ठीक. Now we will study four conditions here, four properties you can say. First one, when
row of A is equals to n, that is rank of coefficient matrix equals to n, because we don't have rank of O. What will be the rank of O? Tell me, rank of O क्या रहेगा बताओ. What will be the rank of O? कंपेरिजन की बात नहीं है अभी, सीधा रैंक ऑफ ओ क्या रहेगा, सीधा बताओ, टाइप करो चैट बॉक्स में. व्हाट विल बी द रैंक ऑफ ओ? नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? पढ़ा है, इट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्राइसिस, मैंने लिख के भी दिया है. रैंक ऑफ ओ इज ऑलवेज जीरो. नल मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या होता है? जीरो. तो उसको हम कंपेयर करेंगे नहीं, याद रखना इस चीज़ को. ठीक, तो हम कंपेयर करेंगे सिर्फ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. इन दैट सिचुएशन वी नो व्हेन रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन. यू हैव यूनिक सॉल्यूशन, right? You have unique solution where all x1 x2s are 0, they all become 0, even xn also. Okay, and here you have determinant of a is not equals to 0. हमेशा यहाँ पे याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने वाला नहीं है. जितने वेरिएबल से उतना ही रैंक रहेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा. ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है रो ऑफ ए इज लेस देन एन. एन से अगर वो वैल्यू छोटा रहेगा तो व्हाट यू विल हैव, तो यू विल हैव, रिमेंबर दिस थिंग, एन माइनस आर linearly, n minus r linearly independent solutions. independent solutions. n माइनस आर मतलब अगर आपका n का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू 2 है, 4 में से 2 जाएगा तो आपके 2 सॉल्यूशंस रहेंगे. हमेशा याद रखना, अगर आपका n का वैल्यू 5 है एंड r का वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 3, तो आपके पास 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस रहेंगे. इंडिपेंडेंट मतलब दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक, तो ये आपको याद रखना है. ओके, इसमें और एक कंडीशन है, और दो कंडीशंस हम कह सकते हैं. फर्स्ट, थर्ड वन when you have m equals to n, and fourth one when you have m is less than n. What is m? Do you remember the m? What is m? n is number of variables. What is m? n मतलब क्या है? x1 x2 x3 ये कितने हैं? वो n है. तो m क्या है? इक्वेशंस कितने हैं वो. m का मतलब क्या? नंबर ऑफ इक्वेशंस. एंड n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो m का मतलब है नंबर ऑफ इक्वेशंस. तो मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ आपको, नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. याद रखना इस चीज़ को, नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल. ओके, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आपके इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी इक्वल है नीचे, लेस देन है. अगर इक्वल रहेंगे तो मुझे बताओ क्या कंडीशन रहेगा. अगर ये सिचुएशन रहेगा तो हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड रो ऑफ ए भी क्या बन जाएगा? 0 बनेगा. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक जो है वो भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. एंड इन दैट केस यू विल हैव वेरिएबल्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. सब वेरिएबल्स क्या बन जाते हैं? 0 बन जाते हैं. लेकिन जब m का वैल्यू n से छोटा होता है तो याद रखना हमेशा यहाँ पे x1 x2 x3 सभी के सभी एट अ टाइम 0 नहीं रहेंगे. नॉट ऑल जीरोज एट अ टाइम, मतलब कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा. एंड आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे. कितने सॉल्यूशंस रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, हमेशा याद रखना. हमेशा, सॉरी ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 रहेंगे. दिस आर ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 रहेगा, उसका रैंक भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉपर्टीज़, बट मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये होमोजेनियस रिलेटेड है. होमोजेनियस का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशंस इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो. ठीक, अभी एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं हम एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस. क्या कहते हैं? एलिमिनेंट. मीनिंग क्या मैं बता देता हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है. बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है. ठीक, तो
एक ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक, जहाँ पे आपके जो लीनियर इक्वेशंस है, योर लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। आपके लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। एंड जब ये कंसिस्टेंट होने के बाद जो सॉल्यूशन आता है लीनियर इक्वेशंस का, जो सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब सभी के सभी x1 x2 x3 आर नॉट जीरो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिविएंट सॉल्यूशन। और उस टाइम पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कहते हैं, याद रखना इसको, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कहते हैं एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं, एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एलिमिनेंट एन लको आर ए लको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस। अभी एलिमिनेंट नाम कहाँ से आया, जब आपके पास सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब सभी के सभी जीरो नहीं होते, तो ऐसे टाइम पे आप कोई भी आपके वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। जब जीरो रहेगा तो हर वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हर x1 x2 x3 का वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सभी के सभी जीरो नहीं होते, इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने को रहेगा, ठीक है। एलिमिनेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रिलेटेड होता है आपके वेरिएबल से। अगर चाहिए तो यहाँ पे देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लास्ट थ्योरेटिकल, इसके बाद सम्स करेंगे। ये आपकी इक्वेशन से, ये a1 a21 am, ये क्या है, आपके कोएफिशिएंट है। तो हम ए को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं। ये वेरिएबल मैट्रिक्स एलिमिनेट कब होगा, जब x1 x2 x3 का वैल्यूज़ क्या आएंगे, जीरो, तो वे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यूज़ अभी नॉन ट्रिवियल में जीरो नहीं आते, इसके लिए उसको हम कहते हैं एलिमिनेंट मैट्रिक्स, एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, नॉट जो एलिमिनेट होने वाला नहीं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो जस्ट या क्या कह सकते हैं उसको, डेफिनेशन की लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन ट्रिवियल रहेगा। जब एक सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आएगा तो उस कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं एलिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके, 1 2 3 4 5 लोग, वेरी गुड। 10 लोग प्रेजेंट है आज, 8 लोग आ गए। कौन कौन आया आज, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उस पर आप सब लोग प्रेजेंट हो, वेरी गुड। आदर्श, हितेश, हुसैन, जीत, खुशबू, किशन लाल, मयूरी, समीर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इट्स नाइस। ओके, तो अभी हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। क्या इंपॉर्टेंट है, ये दिस थियोरेटिकल पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों में से किसी का भी रिलेशन पूछा जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या आता है, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इट इज़ क्वांटिटी, इट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। क्वांटिटी क्या है, एक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन। ऐसी तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, दे आर द क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में हमें देखना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया जाएगा क्या वो कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन से तो उसका सॉल्यूशन निकलता नहीं। कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, ये हमें भी चेक करना है, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन का, आज के आज, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, बट थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स क्या है, के का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ये सब चेक करने के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन सिंगल पार्ट, एंड ये खत्म हो जाएगा तो अपना 80% चैप्टर का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Question 1. Question is saying check for consistency, and if
सो अगर कंसिस्टेंट होंगे तो फाइंड सॉल्यूशन। ठीक, तो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है दे आर 2x माइनस 3y। मैं सीधा आंसर से स्टार्ट करता हूँ, चलेगा? क्वेश्चन इक्वेशन तो यही रहेंगे, ठीक है? मुझे सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है सो दैट आंसर स्टार्ट हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे सीधा आंसर से। वी हैव, तो अभी इक्वेशंस लिख रहा हूँ मैं, 2x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y माइनस 3z इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 19y, 2x प्लस 19y माइनस 47z इक्वल्स टू 32। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हर लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना, इक्वेशंस को वर्टिकल लिखो। फ़ायदा क्या होगा आगे देखो, फ़ायदा क्या होगा आगे देखो। कन्वर्टिंग अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। व्हाट इज योर मैट्रिक्स फॉर्म? ax इक्वल्स टू d। तो मैं a का इक्वेशन लिखता हूँ, 2 माइनस 3 7, 3 1 माइनस 3 2 19 माइनस 47। कहाँ से आया? x के कोएफिशिएंट सब एक लाइन में, y के कोएफिशिएंट एक लाइन में, z के कोएफिशिएंट एक लाइन में। x y z and your d, value of d is 5 13 32। इतना समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिलता। ओके, अभी हम आगे लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कौन? a ऑब्लिक d। ठीक, इज, तो जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा देखो, ये जो a एज इट इज लिखो, 2 3 2 माइनस 3 1 19 7 माइनस 3 माइनस 47 एंड सॉरी यहाँ पे एक हम लाइन रखते थे और इधर आएगा d 5 13 32। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज 4 कॉलम, याद रखना 3 रोज 4 कॉलम। ठीक, ये आ गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी आप इसके आगे आप स्टेप्स क्या करोगे, मुझे एक चीज़ बताना। आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो रैंक निकालना पड़ेगा। तो इसका रैंक हम निकालेंगे बाद में, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो क्या करोगे? डिटरमिनेंट तो नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये 3/3 है, 4/4 है, 2/2 नहीं है, ये तो 3/4 है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की जगह हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्लोन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, इसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे आप चीज़ बताओ, क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है? क्या ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके, और व्हाट एल्स? रो एंड कॉलम, एग्जैक्टली रो एंड कॉलम, बट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, ऐसा वाला सिचुएशन। अदरवाइज 1 0 1 0 बाकी के सब जीरोस। आई होप यू अंडरस्टूड हमें क्या चाहिए। ठीक, तो वी विल एग्जीक्यूट वन थिंग, वी विल डू 2 माइनस 3 वाला सिचुएशन। व्हाट वी विल डू? 2 माइनस 3 वाला सिचुएशन। उससे क्या होगा देखेंगे, 2 माइनस 3 आएगा तो -1 आएगा, -3 -1 होगा, -4 हो जाएगा। फिर 3 को 0 करेंगे, 2 को 0 करेंगे, ये 1 का वैल्यू, फिर 1 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट वैल्यूज़। तो पहले सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता हूँ, सीधा सीधा जो मुझे दिख रहा है, इस 2 को मैं 0 कर सकता हूँ। कैसे? 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। R3 माइनस R2 करता हूँ, R3 माइनस R2 करूँगा, बाकी कोई रो को हाथ नहीं लगाना है। 2 माइनस 3 7 5 3 1 माइनस 3 13। अभी देखो 2 माइनस 2 0, 19 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 19 प्लस 3 22, माइनस 47 माइनस 7 तो इट इज़ माइनस 54, 32 माइनस 5 इज़ 27। एक 0 आ गया, एक काम इजी हो गया। ठीक है, अभी हम इसको 1 कैसे कर सकते हैं?
तो 2 को हम 1 कैसे करेंगे, या फिर 3 को 0 कैसे किया जाए? तो ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 ये वाला बन जाएगा 0। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 2 माइनस 3 आएगा -1। देखो मैं क्या करता हूँ, R1 में से R2 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है, 2 माइनस 3 -1। ठीक, फिर -3 -1 हो जाएगा -4, फिर 7 माइनस ऑफ माइनस +3, 7 + 3 हो जाएगा 10, एंड फिर 5 माइनस 13, 5 में से 13, 13 में से 5 मतलब 8, और बड़े का साइन माइनस, तो -8। बाकी के जो रोज़ है उनको हाथ नहीं लगाया, 3 1 -3 13, 3 1 -3 13, लास्ट में क्या है 0 22 54 27, 0 22 -54 27। ठीक, यहाँ पे 1 आना था, मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे से माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से। तो मैं इधर ऐसे भी लिख सकता था, -1 जाने दो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो क्या दिखेगा, -1 × -1 इज़ +1, -4 × -1 इज़ +4, 10 × -1 इज़ -10, -8 × इज़ 8, नीचे के सब एज इट इज़, 3 1 -3 13, 0 22 -54 27। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को 0 करूँगा, कैसे, 3 -1 × 3, तो 3 - 3 0, तो इसको ऐसे लिखूँगा, R2 -3 टाइम्स ऑफ R1, 3 - 3 × 1 इज़ 3, तो 3 - 3 0, तो ये कैसे दिखेगा, नीचे करो एज इट इज़, 3 1 -3 13, 0 सॉरी R2 चेंज करें ना, ऊपर का एज इट इज़, 1 4 -10 8, तो 3 -1 × 3, तो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, 1 -4 3 × 12, 1 -12 हो जाएगा -11, -3 -10 × 3, तो -3 + 30, तो ये हो जाएगा +27, क्योंकि देखो ना R2 -3 -10 है, तो ये हो जाएगा +10 × 3 30, तो 30 - 3 कितना था, 27, 13 -8 3 × 24, तो 24 में से 13 जाएंगे, बचेंगे कितने, 11, इसको आएगा बड़े का साइन। ठीक, नीचे करो एज इट इज़, -54 27। ठीक, अभी आगे क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, क्या कर सकते हैं आगे, ये 1 0 0 हो गया। ठीक है, अभी इसको 1 करना है, इसको 1 कैसे किया जा सकता है, इसको 1 कैसे करोगे, 27 - 11 करोगे तो आएगा आपको 16, तो 16 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको 0 किया जा सकता है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको 0 करते हैं, 22 को कैसे, R3 + 2 टाइम्स ऑफ R2, 22 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 11 × 2, तो 22 - 22 कितना हो जाएगा, 0। पहला वाला 1 4 -10 8 एज इट इज़, फिर सेकेंड 0 -11 27 -11 एज इट इज़, 0 + 2 × 0, तो 0, 22 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 11 × तो 22, 22 - 22 0, -54 + 27 × 2 होता है 54, -54 + 54 अगेन 0, देन 27 -11 × 2 22, तो 27 - 22 होता है 5। एक साथ 2 zeros आ गए, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ठीक, अभी मैं इसको 0 कर सकता हूँ, कैसे, इस कॉलम में से ये कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -11 माइनस ऑफ माइनस प्लस, -11 + 11 हो जाएगा 0, 8 - 4 क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलो ट्राई करते हैं इसको भी, ये यहाँ पे लिखेंगे C4 फोर्थ कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 एज इट इज़, देन सेकेंड कॉलम 4 - 11 0 एज इट इज़, थर्ड -10 27 0 एज इट इज़, 8 - 4 कितना होता है 4, -11 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो -11 + 11 हो जाएगा 0, 5 - 0 इज़ 5। ठीक, अभी इसको भी हम 0 कर सकते हैं, अगेन सेम ऑपरेशन, लेकिन ये -11 है तो ये दिक्कत देगा, है ना। तो अभी आगे अपने पास 1 4 -10 4 -11 27 0,
इधर 1 आना चाहिए, तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका कुछ इशू नहीं है। तो अभी हमें ए एलिमेंट को 1 करना है एंड इसको करना है 1, ठीक, बाकी सब 0 होने चाहिए। इस 4 को हम 0 कर सकते हैं, इस 4 को 0 कर सकते हैं, इस -10 को भी 0 करेंगे। कैसे पता है? C2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, 4 माइनस 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 4 0। इधर ही दूसरा ऑप्शन करेंगे, C3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ C1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू 10 इज 0, ठीक। तो ये कैसे दिखेगा पता है? ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के बाद। हाँ, लास्ट वाले को भी हम 0 कर सकते हैं, इस 4 को भी अगेन सेम, C4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, 4 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज 0, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो ये सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी देखो क्या आएगा। फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज 1 0 0 एज इट इज। अभी C2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, 4 माइनस 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, ठीक। नेक्स्ट -11 माइनस 0 कुछ नहीं होगा, एज इट इज, नीचे 0 वो भी एज इट इज। -10 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 1, तो -10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0, ठीक। फिर नेक्स्ट 27 माइनस 0 इज 27 ओनली, 0 माइनस 0 इज 0 ओनली, ठीक। देन 4 माइनस 1 इंटू 4, 4 माइनस 4 0, सॉरी 0 0 5। पहुँच गए यहाँ तक? नो, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? हम इधर तक पहुँच गए, ये अपने हाथ में है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सो दैट वी विल गेट -27 0 एंड -11 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इससे ये सब चीज़ें होगी। 27 को कैसे हटाओगे? देखो मैं करता हूँ, 1/-11 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 को, एंड 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे C4 को। इन दोनों को 1/-11, इसको 1/-11, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -11 इंटू 1/-11, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 11 11 कैंसिल आउट, तो कितना आएगा? 1 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये वाला 0, 27 0 एज इट इज़, ओके। रेशपाल कुमावत कौन है? अपने बैच में है? ओ ओहो हो, शी इज़ लड़की है लड़का है? ओके ओके, अच्छा है, चलो। ही इज़ फ्रॉम माई कास्ट। रिशपाल, आर यू देयर? अनम्यूट योर माइक। इफ यू आर देयर देन अनम्यूट योर माइक। नहीं है, ज्वाइन करते भाग गए। चलो, तो ये हो गया आपका 0 1 0 0 27 0 एज इट इज, 0 इंटू एनीथिंग 0 0 इंटू एनीथिंग 0 0 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, कितना आएगा? 1 आएगा। अभी यहाँ पे मैं इस 27 को 0 कर सकता हूँ, कैसे पता है? C3 माइनस 27 टाइम्स ऑफ C2, 27 माइनस 1 इंटू 27 0, तो ये क्या हो जाएगा पता है? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, तो C3 गेट एक्सचेंज विथ C4, तो ये कैसे दिखेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लास्ट में 0 0 0। अभी ये कौन सा दिख रहा है पता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 3, और ये दिख रहा है आपका नल मैट्रिक्स। ये हो गया कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म। तो मुझे बताओ, देयरफॉर रैंक ऑफ A/D मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आएगा, जिसको हम R डैश कहते हैं। रैंक ऑफ R डैश कितना आएगा? चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी। 1 I3 आया, रैंक 3 आएगा, 3 जो I का ऑर्डर होता है 1 0 0 0 1 0 वो आता है। I2 आएगा तो 2 रैंक रहेगा, I3 आएगा तो I1 आएगा तो 1 रैंक आएगा। यहाँ पे I3 आया है तो रैंक कितना रहेगा? 3। और आप मुझे बताओ, हमने इस मैट्रिक्स का हमने निकाला क्या वैल्यू कितना है डिटर्मिनेंट का? एनीबडी? डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला किसी ने कि रैंक क्या हो सकता है? तो हम पहले अभी उसको भी निकालेंगे, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट में उसके वैल्यूज़ लिखेंगे 2 माइनस 3 7, 2 माइनस 3 7, फिर 3 1 माइनस 3, 3 1 माइनस 3, फिर 2 19, 2 19 माइनस 47। ठीक, अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कर दूँ या फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊँ? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 एंड 7 प्लस माइनस प्लस, दो के बाद क्या आएगा, माइनस 47 इंटू 1 इज माइनस 47, माइनस 19 इंटू माइनस 3, तो ये होता है 57, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 57। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 3 वाला, माइनस 47 इंटू 3 इज माइनस 40 इंटू 3 होता है 120, 7 इंटू 3 होता है 21, तो ये हो जाएगा 141, माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, 7, 19 इंटू 3 कितना होता है 57, राइट, माइनस 2 1 ज़ा 2, यह आ गया अपना वैल्यूज। ठीक, अभी इसके आगे वाला स्टेप इधर ही लिखता हूँ, माइनस 47 प्लस 57 मतलब 57 में से 47 जाएंगे तो 10, 10 इंटू 2 होता है 20, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 141 में से 6 जाएगा 135, 135 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 135 2 होता है 270, उसमें और 135 ऐड करो तो 305, 405, तो माइनस 405, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस। ओके, 57 माइनस 2 कितना होता है 55, 55 इंटू 7 55 इंटू 2 होता है 110, 110 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, क्योंकि फिर वो 6 टाइम्स 55 का होगा ना, 57 अगर आप करो 55 इंटू 7 करो, 7 5 ज़ा 35, 3 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 38। मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, 55 इंटू 7 करना है तो 55 का डबल करो तो 110, और 7 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 5, फिर से 2 घटाओ, 110 में 110 ऐड करो 220, तो 3 बचेगा, उसमें से और एक करो 330, और उसमें अगेन 55 ऐड करो 385 होता है, तो प्लस 385। ठीक है, अभी देखना जरा यहाँ पे 405 में से अगर 20 जाएगा तो माइनस 385 आएगा, राइट, यस, एंड ये प्लस 385, इट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 आया तो आपका रैंक क्या रहेगा, 3 रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी 3, रैंक ऑफ ए 3 नहीं रहेगा, तो रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे, M11, M11 से निकालते हैं माइनर से, M11 ये वाला जाएगा, तो 1 माइनस 47 19 माइनस 3, 1 माइनस 47 19 माइनस 3 करो, माइनस 47 इंटू 1 इज माइनस 47 प्लस 57, रैंक ये आएगा 10, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, और M11 लिया, ऑर्डर क्या है इसका 2, तो ये होता है R, देयरफॉर R इज लेस देन R डैश, R का वैल्यू कितना है, R डैश 3 है, और R का वैल्यू कितना है 2, रैंक कितना है इसका 2, R डैश, और इसी को हम कहते हैं R इज़ नॉट इक्वल्स टू R डैश, जब भी R इज़ नॉट इक्वल्स टू R डैश होता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, टाइप कीजिए, कंसिस्टेंट है तो C, इनकंसिस्टेंट है तो I, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टाइप करना, वेरी गुड, इट इज़ इनकंसिस्टेंट क्योंकि रैंक इज़ नॉट इक्वल, इज इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो, सिर्फ रैंक चेक करना है, कंसिस्टेंट है तो क्या, कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या। ठीक, अभी हम एक होमोजीनियस वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन और रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन 2 सेम, चेक कंसिस्टेंसी फॉर द, यही आएगा, चेक कंसिस्टेंसी एंड हेंस फाइंड सॉल्यूशन। तो सीधा क्वेश्चंस का इक्वेशन लिखने की जगह पे मैं सीधा सॉल्व कर स्टार्ट करता हूँ। वी हैव
जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या है, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y वाई एंड वाई, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0, 2x plus 4y plus z equals to 0. Now tell me, therefore it is in general form or homogeneous equation? It is a जनरल फॉर्म है तो जी, होमोजेनियस है तो एच। कौन सा इक्वेशन है, जनरल फॉर्म वाला या होमोजेनियस? जल्दी, अरे ये तो होमोजेनियस है क्योंकि इसका जो कांस्टेंट पार्ट है सबके सब क्या है, जीरो है ना। इट इज़ ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप ये फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, मैं हाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो ये आपको मिल गया। तो अभी सबसे पहले मैं निकालूंगा, इट कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इट इनटू ए मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू डी। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा, 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 3 2 4 1। एक्स की जगह पे आएगा x1 सॉरी एक्स वाई एंड जेड, एंड आपका डी की जगह पे आएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इसके लिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा पहले करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे, 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 3 2 4 1। और याद रखना होमोजेनियस इक्वेशन में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं करते, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12, ठीक। 1 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, माइनस 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। 12 में से 2 जाएगा 10, 10 इंटू 3 होता है 30, 4 प्लस 6 10, 10 इंटू 1 इज़ 10 ओनली, 16 प्लस 4 इज़ 20, 20 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 20, 30 में से 10 जाएगा 20, 20 में से 20 जाएगा 0। Since determinant of A is equal to 0, it has non-trivial solution। हमने देखा था एक हमने स्टेप देखा था होमोजेनियस इक्वेशन में, अगर डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ज़ीरो आएगा तो नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल मतलब सभी के सभी x का वैल्यू ज़ीरो आने वाला नहीं है, ठीक। तो ये आपका इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अभी इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कौन से सॉल्यूशंस आएंगे वो अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इक्वेशन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ एज ए एक्स इक्वल्स टू 0, ए का वैल्यू हमने क्या लिखा था, 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 3 2 4 1। यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएगा 0 0 0। अभी ये 0 होने के कारण कुछ भी आप अप्लाई करो तो इधर कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा, सब इधर होगा। तो अभी मैं इसको क्या करके चेंजेस ला सकता हूँ, व्हाट कैन द चेंजेस, यहाँ पे एक याद रखना, ऐसे टाइम पे सॉल्यूशन निकालना है तो कोई भी एक रो या एक कॉलम को, एक रो को पूरे को 0 बना दो। तो यहाँ पे मैं 0 कैसे कर सकता हूँ पता है, 4 माइनस 2 ये 0 हो जाता है, मतलब पता है कैसे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2 4 1, 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज 0, माइनस 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 2 एंड माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 5। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक। दिस इज एक्स वाई जेड, इधर कुछ ऑपरेट नहीं करेंगे एंड 0 के साथ कुछ भी ऑपरेशन करो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक। अभी मुझे इस माइनस 10 को 0 करना है, कैसे करूँ, माइनस 10 को 0 करना है, हाउ कैन आई डू दैट,
ऐसे करूँ, इस -1 को मैं एक बार 0 कर देता हूँ तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस मिलेगा। इन दोनों को ऐड करता हूँ, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो लिखता हूँ R1 इज गेट एडेड विद R3, तो 0 -10 -5 एज इट इज़, 2 4 1 भी एज इट इज़, 3 + 2 5, 1 + 4 5, -1 + 1 0, x y z 0 0 0 0। ठीक, अभी इस -10 को 5 कैसे करेंगे, एनी आइडिया? यहाँ पे अभी हम नॉर्मल फॉर्म में देखो 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 देखो, मैंने क्या कहा था, नॉर्मल फॉर्म अगर रहेगा तो हम कॉलम एंड रो को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ पे एक तो रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फॉर्म वाला सिचुएशन रहेगा जहाँ पे रैंक निकालना है, वहाँ पे हम कॉलम्स को एंड रोज को मिक्स कर सकते हैं। हाँ, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे फिर से 0 + 10 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 रहेगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, कुछ चेंजेस ही नहीं कर पाएंगे। इसमें हमने क्या किया, -2 -3, R2 डिवाइडेड बाई 10, चलेगा चलेगा चलेगा। ये -10 करेंगे तो ये +1 आएगा, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये 2 आएगा। ठीक, 2 और 1 हो जाएगा, बट फिर कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर कुछ करेंगे तो 5 × 2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, -5 आएगा, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। देखो और एक चेंजेस कर सकता हूँ मैं, R2 -2 टाइम्स ऑफ R3 की जगह पे R2 + 3 टर्म्स ऑफ R3 करेंगे, तो मतलब इस -3 को अगर मैं स्टार्टिंग में 0 बना दूँ, ठीक है, तो -3 + 1 × 3 0 हो जाएगा। तो बाकी किसको हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। 4 + 3 2 = 6, 4 + 6 होता है 10, -2 + 4 3 = 12, -2 + 12 ये भी कितना हो जाएगा, +10, -3 + 3 बन जाएगा 0। ठीक, तो ये क्या आएगा मेरा 10 + 10, एंड ये रहेगा मेरा 0। ठीक, अभी इस 10 को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ, देखो ज़रा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, 5 5 0 एज इट इज़, 10 - 10 0, 10 - 5 × 2, तो 10 - 10 0, 10 - 10 0, 0 - 0 0, 2 4 1, x y z ये सब 0 0 0 आएंगे। अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक पूरा रो क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अभी मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 × x होता है 5x, + 5 × y हो जाएगा 5y, + 0 × z कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या है 0, 0 × 0 0 कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा नीचे 2 × x इज 2x, + 4 × y इज 4y, + 1 × z इज z, इक्वल्स टू 0। अभी इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, दोनों में से दो, ये +5 को उधर में भेजूंगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू -5y, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो x का वैल्यू आएगा -y। ठीक, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 2x की जगह पे क्या आएगा, -y + 4y + z इक्वल्स टू 0, 2 × -y इज -2y + 4y + z इक्वल्स टू 0, 4 में से 2 जाएगा 2y + z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू ये 2y उधर जाएगा तो -2y। तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2, x इन द फॉर्म ऑफ y, z इन द फॉर्म ऑफ y, राइट। अभी इसके आगे व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम y एज अ बेस कंसिडर करेंगे, एंड इधर से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल है। कैसा, ये नॉन ट्रिवियल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये नॉन ट्रिवियल होने के बावजूद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे m = n है। ठीक है, m = n है, मतलब आपके नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है इसके x y z 3 वेरिएबल, ये 2 3 इक्वेशंस। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू कुछ तो भी कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉन ट्रिवियल। मतलब यहाँ पे y के वैल्यू के बेसिस पे x एंड z का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट y इज इक्वल्स टू 1, देयर फोर x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -y, तो y 1 है तो ये -1 होगा, एंड z का वैल्यू क्या है -2y, तो y की जगह 1 आएगा, -2 इंटू 1 इज -2। तो हमें मिल गया ये सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ y। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ y। अगर आप कुछ और कंसिडर करो और y का वैल्यू ले लो -1, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, माइनस इंटू माइनस +1, एंड z का वैल्यू हो जाएगा +2। तो आपका जो सोल्यूशन रहेगा x y z, इट विल बी -1 1 -2, और इट विल बी 1 -1 2। कोई भी एक सोल्यूशन होगा, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये, और जैसे जितने वैल्यूज़ लोगे आप y के, उतने आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। y के आप जितने भी वैल्यूज़ लोगे, y का वैल्यू 0 नहीं लेना है, बस एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y 0 तो x एंड z 0, तो आप एक सिंगल सोल्यूशन पे आके बैठ जाओगे, दैट विल बी नॉट फेयर थिंग, इनकन्सिस्टेंट नहीं है वो। ठीक, तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा x y z x1 x2 x3 के साथ ही है। ओके, सो नाउ